Students, already we have completed exercise 3.5 in that question number 1 and 2. Now I will move with question number 3. Question number 3 is solve the following pair of linear equation by substitution and cross multiplication method. See here, substitution method already we have done, full exercise हमने किया था. In 3.5 we are learning cross multiplication method. So you can try these two equation by substitution method. उससे तुम लोग इसको solve कर सकते हो. Now I am going to teach only by cross multiplication method. Students, already I have written the question here. This was the given question, and whenever we have cross multiplication method, try to convert these two equation to standard form. Standard form में लिखोगे ना तो task हमारा बहुत easy हो जाएगा. For cross multiplication method we have to start with the coefficient. Okay, तो पहले मुझे कौन सा coefficient लेना है, this और this. कहाँ से मैं start करूँ? I have to start with coefficient of y. Okay, so 5, यहाँ पे coefficient देखो 5 and 2. After that -9, -4, then coming to this 8, 3. ये तो हमने सब जो भी नंबर है इक्वेशन का वो हमने लिखा. And then I have to complete this by writing the first terms once again, 5/5 and 2. तो हम कैसे स्टार्ट करते? फर्स्ट 5 and 2, -9 and 4, 8 and 3. देखो 8 and 3. आफ्टर दैट वी कंप्लीट दिस वन. जो फर्स्ट हमने लिखा था वही हम लास्ट लिखते हैं. एंड हियर वी हैव टू राइट x, y and 1. नाउ x upon, we have to write x upon these four number, that is 5 and 2 and -9 and -4. Then y upon, कौन सा नंबर लिखना है? ये चारों नंबर लिखना है मुझे. -9, -4, 8 and 3. After that 1 upon, I have to write these four number. Okay, एक पूरा बॉक्स, स्क्वायर बॉक्स हमें कंप्लीट करना है. 8, 5, 3 and 2. इतना अगर हमने लिखा तो हमारा 50% टास्क ख़त्म हो गया. अब हमें जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके नंबर्स लिखना है x. अब हमें ऐसे क्रॉस करना है. फर्स्ट वी हैव टू क्रॉस दिस. 5 into -4 will be -20. And 1 minus sign is compulsory. Minus sign compulsory है. After that we have to multiply this. 2 into -9 will be -18. Then y upon, अब ये दोनों मल्टीप्लाई करो. -27 माइनस कंपल्सरी. देन दिस वन 8 4 ज़ा 32 विथ माइनस. दिस इक्वल टू 1 upon 8 2 ज़ा 16, माइनस इज कंपल्सरी. 5 3 ज़ा 15. अब हम वैल्यूज़ लिखेंगे. x अपॉन, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, दैट इज़ +18. -20 + 18. और कंफ्यूज होता है तो तुम लोग यहाँ पे लिख सकते हो -20 + 18 इज़ -2. सो दिस इज़ -2. दिस इक्वल टू y अपॉन माइनस माइनस प्लस, +32 -27 विल बी 5. माइनस करके देखना तुम लोग. दिस इक्वल टू 1 अपॉन 60 -15 विल बी 1. अब टास्क क्या है? जस्ट कंपैरिजन. फर्स्ट विथ लास्ट, सेकेंड विथ लास्ट. सो इट इज़ x अपॉन -2 इक्वल टू 1 अपॉन 1 विल बी 1. तो 1 लिखो. सो x इज इक्वल टू, क्रॉस कर दो. 1 into -2 विल बी -2. सो x वैल्यू आया -2. नेक्स्ट y अपॉन 5 is equal to 1 upon 1. 1 upon 1 will be 1. So y is equal to 5. So this is our solution set. अब हमें खाली solution set लिख देना है. Solution set is equal to x, y. That is -2 and 5. Bas, this is cross multiplication method. Students, now I will go with question number 3. In question number 3 questions are all statement questions.
So with the help of statement we have to form a linear equation and then we have to solve. So here first given is, first try to read the statement and understand. A part of monthly hostel charges is fixed and remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. देखो जब हम हॉस्टल में रहते हैं ना तो वहाँ पे चाहे हम एक दिन के लिए खाएंगे 2 दिन के लिए खाएंगे, लेकिन वहाँ पे एक अमाउंट फिक्स रहता है। और हम खाएंगे भी नहीं तो भी हमें अमाउंट पे करना ही है। सो सम पार्ट ऑफ अमाउंट इज़ फिक्स्ड, कुछ तो अमाउंट हमें पे करना ही है, वो कंपलसरी रहेगा चाहे हम खाएंगे या नहीं खाएंगे। आफ्टर दैट चार्जेस कैसे रहता है, एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज दैट वन हैज़ टेकन द फूड। एक तो अमाउंट फिक्स रहेगा और दूसरा अमाउंट कैसे रहेगा, जैसे पर डे के हिसाब से रहेगा। मैं 1 डे पे खाऊंगी तो मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस आइडिया वी आर गोइंग टू राइट हियर, यहाँ पे लास्ट देखो, फाइंड द फिक्स्ड चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो पहले हमें फिक्स्ड चार्जेस लिखना है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट वन। लेट फिक्स्ड चार्ज बी एक्स। जो हमें फिक्स अमाउंट देना है वो फिक्स है, दैट इज एक्स रुपीज़। कितना है हमें पता नहीं, बट वी हैव टू पे एक्स रुपीज़। आफ्टर दैट cost of food per day. So let cost of food per day. तो cost of food per day कितना अमाउंट देना है पर डे का अमाउंट वो भी हमें पता नहीं है, वो मैं क्या लूँगी ₹y. So I have taken x and y. Now I have to form a equation. अब इक्वेशन नेक्स्ट स्टेटमेंट से आएगा। When a student A टेक्स फूड फॉर 20 डेज। कोई तो एक स्टूडेंट है उसका नाम है ए, ओके। अब वो मेस में खाना खाने गया है, ओके, हॉस्टल में है और मेस में खा रहा है। अब वो खाए या ना खाए उसको तो अमाउंट एक्स फिक्स देना ही है, एक्स अमाउंट उसको फिक्स देना ही है। उसके बाद पर डे के हिसाब से उसका रेटिंग चलेगा। देखो, अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज। अब वो 20 डेज उसने खाना खाया, कितना डेज खाया उसने, 20 डेज। अब पर डे का रेट क्या है, वाई है, तो 20 डेज का रेट उसको कितना पे करना पड़ेगा, 20y। ये ऑलरेडी ऐसे मैंने एक क्वेश्चन और सिखाया था प्रीवियस वीडियो में। सो फर्स्ट अमाउंट इज़ फिक्स्ड, आफ्टर दैट पर डे के हिसाब से उसको पैसे अमाउंट पे करना है। सो ही हैज़ टेकन फूड फॉर 20 डेज एंड 1 डे का y रुपीज़ है, तो 20 डेज का अमाउंट कितना आएगा, 20y। अब व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज शी हैज़ टू पे 1000 रुपीज़। अभी टोटल मिला के कितना उसको पे करना है, 1000 रुपीज़। सो यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म हो गए, तो उसको हम डिटेल में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। फॉर ए किसे आया है, एक्स अमाउंट इज फिक्स्ड एंड शी इज टेकिंग 20 डेज फूड, and for that she is paying 20y rupees and total she is paying rupees 1000. So this is our first equation. अब second equation देखो, whereas student B, अब B का चल रहा है इधर, ओके। अब एक स्टूडेंट है B, अब B मेस में खाना खाने गई है, तो उसको एक तो एक्स अमाउंट पे करना ही है, दैट इज फिक्स। After that, a student B who takes food for 26 days. अब स्टूडेंट B कितने दिन के लिए खाना खाया उधर, 26। अब पर डे का कितना उसको पे करना है, y अमाउंट, तो 26 डेज के लिए उसको कितना अमाउंट पे करना है, 26y, isn't it? तो ये आइडिया हम अप्लाई करके सेकेंड इक्वेशन फॉर्म करेंगे। A student B who takes food for 26 days will pay rupees 1180 as a hostel charges. Okay, B के लिए कितना है, x plus 26y is equal to, टोटल अमाउंट कितना पे किया उसने, 1180. So this is equal to 1180. So this is equation 2. Now we have to solve for x and y. अब x and y सॉल्व करना इजी है। सी दो वी आर इन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड,
हमारा एक्सरसाइज 3.5 चल रहा है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड चल रहा है. बट इन एग्ज़ाम इफ़ नो मेथड इज़ मैंशनड देन यू कैन यूज़ एनी मेथड. यहाँ पे तुम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ज़्यादा इजी एलिमिनेशन मेथड होता है. एक्स और एक्स इजीली एलिमिनेट होगा. सो यूज़ दैट मेथड, देन यू फाइंड एक्स एंड वाई. एंड ऑलरेडी आई टॉट यू ऑल द मेथड, सो यू सॉल्व. अब मैं आगे से खाली इक्वेशन दूंगी और तुम लोगों को सॉल्व करके आंसर फाइंड करना है. सो सॉल्व दिस वन. स्टूडेंट, सेकेंड क्वेश्चन इज अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर. देखो, ये आगे तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है. जब भी ऐसे फ्रैक्शन आता है तो हमें फर्स्ट ना बेसिक आइडियाज़ लिखना है, बेसिक फॉर्मेशन लिखना है. पूरा क्वेश्चन पढ़ के कंफ्यूज नहीं होना है. क्वेश्चन क्या है? फाइंड द फ्रैक्शन है. वेन एवर वी हैव फ्रैक्शन ऐसे कुछ आ गया ना तो थोड़ा बहुत हमें बेसिक आइडियाज़ लिखना है. लेट सी फ्रैक्शन इज मेड बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. सो लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू वाई. See, I am writing here n and d. You can write full, that is spelling के साथ लिख सकते हो, numerator, denominator. See, whenever I have numerator and denominator, then I have fraction. Therefore, fraction is x upon y. तुम लोगों को पता है numerator upon denominator रहता है. So, I have to find this now. अब ये फाइंड करने के लिए मुझे इक्वेशन फॉर्मेशन करना है. So, for that I have to read. A fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator. देखो यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है. अब हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन. न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करना है. न्यूमरेटर इज x, तो x माइनस 1. when 1 is subtracted from the numerator and the fraction becomes what? 1/3. तो डिनोमिनेटर के साथ कुछ नहीं किया है, तो जो जैसा है डिनोमिनेटर वैसे ही रहेगा. when 1 is subtracted from the numerator then the whole fraction becomes 1/3. so I have to write here 1/3. अभी सिंप्लीफाई करना है. दिस इज़ नॉट माई इक्वेशन. अब एक क्रॉस कर दो. So 3 will come this side. 3 in the bracket x minus 1 is equal to y. So 3x minus 3 is equal to y. अब y इधर ले लो. 3x minus y. अब ये -3 मैं यहाँ पे ले लेती हूँ. ओके. So this is first equation. अब हम सेकंड इक्वेशन फॉर्म करेंगे. फिर से हमें क्वेश्चन पढ़ना है. एंड it becomes 1/4. it becomes मतलब fraction. it becomes 1/4 when 8 is added to denominator. देखो, डिनोमिनेटर में हमें 8 ऐड करना है. न्यूमरेटर के साथ हम कुछ नहीं कर रहे हैं. सो न्यूमरेटर विल रिमेन एज इट इज, बट डिनोमिनेटर वी आर एडिंग 8. when 8 is added to denominator the fraction will become 1/4. so this fraction will become 1/4. अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन फॉर्म करो. 4 will go that side, so it is 4x is equal to y will go this side, y plus 8. so take y this side. 4x minus y is equal to 8. this is second equation. now you have both the equation. you can solve this one by any method. इक्वेशन को तुम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन, ग्राफिकल मेथड और सब्स्टिट्यूशन कोई भी मेथड से सॉल्व करना. देन यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई. जब एक्स वाई आता है तो इधर फ्रैक्शन में वैल्यू पुट कर दो, बिकॉज वी वांट हियर फ्रैक्शन. तो एक्स के प्लेस में एक्स का वैल्यू पुट करो, वाई के प्लेस में वाई कर दो. देन वी विल गेट द फ्रैक्शन. Students, now we will move with question number 3. Yash scored 40 marks in a test. यश को कितना मार्क्स मिला है? 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर. देखो, एक राइट आंसर अगर वो दे रहा है तो कितना मार्क्स मिल रहा है उसको? 3 मार्क्स. सो ही इज गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर. तो रॉन्ग आंसर अगर दिया तो एक एक रॉन्ग आंसर का उसका मार्क्स 1 मार्क कट हो रहा है. एंड अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है,
Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks have been deducted. अब नेक्स्ट केस में क्या हुआ, 4 मार्क्स राइट आंसर के लिए मिल रहे हैं और 2 मार्क्स रॉन्ग आंसर के लिए डिडक्शन चल रहा है. डिडक्शन मीन्स माइनस. देन ही वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स. देन हाउ मेनी टोटल क्वेश्चंस आर देयर इन द टेस्ट. तो पहले यहाँ पे स्टेटमेंट राइट और रॉन्ग आंसर का है, तो हम लिखेंगे लेट राइट आंसर्स भी, या नंबर ऑफ राइट आंसर्स भी लिख सकते हो तुम लोग. लेट नंबर ऑफ राइट आंसर्स बी x एंड रॉन्ग आंसर्स बी y. ओके, तो राइट आंसर x है और रॉन्ग आंसर y है. अब हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे. देखो, टोटल राइट आंसर्स x नंबर्स है, रॉन्ग आंसर्स y नंबर है. He scored 40 marks in a test by getting 3 marks for each right answer. अगर वो 1 राइट आंसर दे रहा है तो उसको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 3. अब यहाँ पे राइट आंसर के कितने क्वेश्चन है, x क्वेश्चन है, सो ही विल गेट 3x मार्क्स. क्यों मैंने 3x लिखा, बिकॉज 1 क्वेश्चन राइट आंसर का उसको 3 मार्क्स मिल रहा है और राइट आंसर के क्वेश्चन कितने, x है. ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. टोटल राइट आंसर x है तो उसको कितना मार्क्स मिलेगा, 3x. आफ्टर दैट ही विल बी लूजिंग 1 मार्क. लूजिंग आता है तो माइनस आएगा. एंड 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर. अगर एक उसने रॉन्ग दिया तो 1 मार्क्स लेस हो रहा है. अब रॉन्ग आंसर्स के क्वेश्चंस कितने हैं इधर, y है, तो टोटल उसको y मार्क्स लेस हो जाएगा. सो व्हेन ही इज गिविंग राइट आंसर एंड देन लूजिंग फॉर y wrong answer, then how much he is getting here, 40 marks. So this one will be your first equation. अब second equation में condition change हो गया. Had 4 marks have been awarded for each correct answer. पहले 3 मार्क्स दिया था, अब कितना दे रहे हो लोग, 4 मार्क्स फॉर राइट आंसर. अगर एक राइट हुआ तो 4. टोटल राइट आंसर्स कितने हैं उधर, x है, तो उसको मार्क्स कितना मिलेगा, 4x, क्योंकि एक एक क्वेश्चन का उसको 4 मार्क्स मिल रहा है, 4x. एंड देन ही इज गेटिंग 4 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स विल बी डिडक्टेड. डिडक्टेड मीन्स माइनस. 2 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट. इनकरेक्ट कितना है इधर, रॉन्ग आंसर्स y है और 2 मार्क एक एक क्वेश्चन का उसको लेस हो रहा है, सो -2y. So when this condition is there, then how much he is getting? He is getting 50 marks. 50. So now you have question number equation 1 and equation 2. Solve these two equation, then you will get x and y value. कोई भी मेथड अप्लाई करके करना. तो जब हम ये सॉल्व करते हैं ना, तो x का वैल्यू आएगा 15 और y का वैल्यू आएगा 5. मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया था. क्यों मैं ये आंसर दे रही हूँ, x इक्वल टू 15, y इक्वल टू 5. x और y का वैल्यू फाइंड नहीं करना इधर. क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी क्वेश्चंस वेर देयर इन द टेस्ट. देखो, राइट आंसर्स के 15 है, रॉन्ग आंसर्स के 5 है, तो टोटल क्वेश्चन कितना हुआ उधर, टोटल क्वेश्चन इज इक्वल टू, ये दोनों प्लस कर दो, x प्लस वाई, दैट इज 15 प्लस 5, दैट इज 20. So the question paper contains total 20 questions. With this we have completed question 3. Now you can try 4th and 5th. With this I will stop exercise 3.5 and in next video I will move with 3.6 exercise. Try to solve these two. If you are not getting, then again I will teach you. So students, please keep practicing. Thank you.